Hello everyone, hope you all are okay and fine. My name is Gajanan. Welcome to our channel Success Eduday. Today we are starting a new chapter of a class 9 mathematics 2, that is geometry. Today's topic is basic concepts of a geometry. In today's session we are discussing the basic concepts of geometry. Before moving ahead, let me tell, in previous standard we are learning only one part, that is mathematics. In that part we are already learning some parts of geometry and some parts of algebra. So now today onwards, or in ninth standard onwards, there are two parts of mathematics, that is geometry and algebra. So we have already started algebra. If you do not go through it, don't worry, link are present in the description. So our today's session, in this session we are learning following points, that is points and a line, point, line and a plane. So we are learning these are the points: point, line, plane, and a coordinate points and a distance and a one betweenness. So we are covering these 3 points in today's session and one practice set on that. So now let's start our today's session. And one thing, don't forget like, share and subscribe to our channel and press a bell icon for more such videos. So now let's see. Observe the figures. This is one pyramid. This is built up in a 300 years before by Christian era. So आपको क्या लग रहा है, इसका मैं पूरा मीनिंग बता देता हूँ आपको एक शॉर्ट में. एक पिरामिड स्ट्रक्चर एक प्लेन है. सो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना बेसिकली विदाउट मैथमेटिशियन और ज्योमेट्री के बगैर पॉसिबल नहीं है. एक प्लेन चाहिए, उस प्लेन के अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइन करना पड़ता है. दैट इज नथिंग बट डिज़ाइनिंग पार्ट इज नथिंग बट योर ज्योमेट्री. So in today's session or today onwards we are learning geometry. So now this is a description. ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताया मैंने. एक इजिप्ट के ये थे, उन्होंने प्लेन के विदाउट प्लेन के ऊपर बनाया था. प्लेन के ऊपर, प्लेन मीन्स एक प्लेन फिगर बनाएंगे, उसके ऊपर प्लेन रखते गए और उसके ऊपर एक ज्योमेट्री फॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अ ज्योमेट्री. वहाँ से ज्योमेट्री का इन्वेंशन स्टार्ट हुआ है. ऐसे ग्रीक मैथमेटिशियन थे ने जो इजिप्ट के रहने वाले थे. So now our today's point is main focus on basic concepts of geometry. So that is point, line and a plane. So we already know that we cannot define a numbers. हम define numbers को define नहीं कर सकते. तो similarly we cannot define a point. Point क्या होता है? अनगिनत point particles का एक combination होता है. That is called as a point. अगर मैं मान के चलूँ this is one a point. सो ये मेरा जो रेड कलर का ये जो दिख रहा है, ये पॉइंट अनगिनत पॉइंट से, अनगिनत पार्टिकल से बने हुआ है. दैट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट. अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी डॉट देता हूँ, अगर मान के चलो ये मेरा डॉट है, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट. सो ये कितने सारे पार्टिकल्स का बन के मिला है हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. दैट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट. एक सिंपली नाम दिया है पॉइंट. सो लाइन, लाइन इज आइदर मे बी अ लाइन. इन दिस लाइन देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लाइन वी आर लर्निंग इन अ नेक्स्ट लेक्चर्स, अपकमिंग लेक्चर्स में सुनेंगे. दैट इज अ लाइन. लाइन अनगिनत लंबी रह सकती है. दैट मे बी आइदर फ्रॉम इनफाइनाइट लाइन रह सकती है. सो वी ऑलरेडी डिस्कस इन अलजेब्रा और मैथमेटिक्स इन प्रीवियस स्टैंडर्ड व्हाट इज मीन बाय लाइन. सो हमने पढ़ा है इसके पहले भी. देन उसके बाद प्लेन. प्लेन मीन्स होता है एक फिगर. एक प्लेन एक मीन्स एक लेआउट होता है, लेआउट टेक्स्ट स्ट्रक्चर. आइदर मे बी अ लाइन इन अ प्लेन, either may be a rectangular, either may be a triangle और either it may be a circular plane. मीन्स एक प्लेन ऐसा एक तरीका होता है, क्या बोल सकते हैं आप इसे, एक पेपर. जैसे एक पेपर है, पेपर इज नथिंग बट अ प्लेन. उस भी प्लेन कहा जा सकता है इन ज्योमेट्री फॉर्मेट. सो आई होप आपको यहाँ तक ये लाइन, पॉइंट्स, प्लेन में कोई दिक्कत नहीं होगी. तो नाउ इसके आगे बढ़ते हैं. सो इसके आगे का पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स. सो यू ऑलरेडी नो दैट वी आर plotting in A standard. Chapter number 1 is 1 or 2. In that we are draw a number line. So how to plot a number lines you already know that. So there is a one number, that is 1 0 at a center, and then positive numbers on a right hand side and negative numbers on a left hand side. So left hand side or right hand side. So always write positive numbers on a right hand side and left hand side on left hand side only negative numbers are you have to write it. So लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहता है, नेगेटिव नंबर्स, और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स.
सो हमारा सेंटर में क्या रहता है 0। सो 0 से लेके इनफाइनाइट इधर रह सकते हैं और इधर रह सकते हैं। दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर लाइन। सो यहाँ तक डाउट है नहीं। सो इसके बाद आता है, इसमें वर्ड ऐड हुआ है दैट इज कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स मीन्स क्या होता है, कोई तो भी पॉइंट्स, कोई तो भी पर्टिकुलर डिस्टेंस। मान के चलो मेरा पॉइंट 0 है, इसका नाम दिया मैंने O, और मेरा एक पॉइंट है 5 पे, उसका नाम दिया A। सो ये क्या हुए आपके 0, 5। वी ऑलरेडी नो दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको पता है ग्राफिकल्स। लास्ट क्लास 8th स्टैंडर्ड में हमने लास्ट चैप्टर्स देखे थे ग्राफ्स के बीच में। तो वहाँ पे हमने ग्राफिकल्स कोऑर्डिनेट मीन्स 0, 5 दिस विल बी योर कोऑर्डिनेट्स। 0, 5 this will be your coordinates. That is 1, 3 this will be your coordinates. You have to plot on a graph now, graph page, that is either in this format. You have to line that. So you already know the coordinates. एक coordinates वहाँ से word आया हुआ है, और coordinates of points. So यहाँ पे अपने हमारे points आ चुके हैं। ये points A point है, B point है, C point है, D point है, E point है। So these all points representation means आप नंबर लाइन पे अगर कोई डॉट देते हो, अगर आप नंबर लाइन पे कोई डॉट देते हो और उसे नाम देते हो A, अगर B और कई X, Y, Z ऐसे डॉट देते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहा जाता है उसको। एक पॉइंट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से लेके वहाँ तक का। जैसे अगर O to A पूछा जाए तो ये क्या होता है 0, -5। सो इसे लिखते कैसे, -5, 0, इस तरह से लिखते हैं। सो आई होप ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स कवर हो चुका है, आपका समझ में आ चुका है। सो इसके आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद आता है डिस्टेंस। जनरली इस पर डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा जाता है दो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस कितना है। सो हम यही एग्जांपल ले लेते हैं जो आपके बुक में दिए हुआ है। मैं पेज छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, जो आपको समझ में दिक्कत ना हो। सो नाउ लेट्स सी। सो अभी आपके पास क्या पूछा है, डिस्टेंस ED पूछा है। दैट इज E मेरा कहाँ है, E क्या है पॉजिटिव नंबर्स है, और मेरा D इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर्स। सो मुझे डिस्टेंस निकालना है। सो मैं हमेशा बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर्स सब्ट्रैक्ट करूँगा। हमेशा मैं बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करूँगा, यानी घटाऊँगा। सो मेरा बड़ा नंबर क्या है 3 और छोटा नंबर क्या है 1। सो मेरा डिस्टेंस कितना आएगा 2। सो मेरा डिस्टेंस बिटवीन E एंड D इज कितना, सेंटीमीटर या मीटर रहेगा। सो दैट इज़ 2 यूनिट रहेगा। यहाँ पे कोई मेजरमेंट दिया हुआ नहीं तो इसमें यूनिट्स कहा जाता है, ऑलवेज 2 यूनिट्स। अगर आपको कोई मीटर डिस्टेंस दिया नहीं है तो दैट इज कॉल्ड राइट 2 यूनिट्स। सो आपका कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट का डिस्टेंस है। सो नाउ नेक्स्ट 3 और नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन C एंड D। CD के बीच में का डिस्टेंस। सो C आपका क्या है माइनस, आपका C कितना है डिस्टेंस, सो अभी आपका C का डिस्टेंस कितना है, C का पॉइंट है, C पे पॉइंट है -2 पे और D है 1 पे। सो मैंने हमेशा कहा बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर घटाना है। आपका बड़ा नंबर क्या है 1, तो 1 माइनस अप -2। सो 1 माइनस माइनस ये क्या होगा, दोनों का प्लस हो जाएगा, तो आपका डिस्टेंस मिलेगा 3। सो आपका CD का डिस्टेंस कितना रहेगा 3 यूनिट। आई होप आपको गाइस समझ में आ चुका है किस तरह का सिनेरियो है, क्या है। अगर ऐसे आपको समझना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो चलो इसके आगे का पार्ट पढ़ते हैं। हमारा आगे का पोर्शन है दैट इज बिटवीननेस। मीन्स क्या होता है दरमियान, किसके दरमियान क्या है, किसके दरमियान क्या नहीं है। जैसे मेरे और मेरे फैमिली के बीच में मेरे ब्रदर सिस्टर्स रहते हैं, हम दोनों के बीच में रह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स लिया जाए तो यहाँ पे देखिए कि एग्जांपल दिए हुआ है, देयर आर 3 पॉइंट्स आर डिस्टिंक्ट कोलिनियर पॉइंट्स। कहाँ है, कोलिनियर है, मीन्स एक लाइन में है, आपको दिख ही रहा है एक लाइन में, दैट इज कोलिनियर पॉइंट्स है। सो इसके किस तरह के पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है उन्होंने दिया है, मेंशन किया है। जैसे PQR हो सकता है, PRQ हो सकता है, RPQ हो सकता है। इस तरह के 3 पॉसिबिलिटीज़ है, 3 पॉइंट्स नंबर लाइन पे लिखने के। सो इसमें क्या है, Q इज़ बिटवीन P एंड R। मीन्स Q क्या है आपका, Q क्या है बीच में किसके, Q क्या है किसके बीच में, P और R के बीच में, वो लिखे हुआ है इन्होंने नीचे। यहाँ पे R है किसके बीच में, P और Q के बीच में, यहाँ पे दिया है मेंशन किया है।
आर इज बिटवीन पी एंड क्यू। सर बिटवीननेस मीन्स बीच में होने वाला चाहिए, दोनों के बीच में। जैसे अगर मैं आपका दोस्त है और बाजू में आपकी दोस्त, एक गर्ल दोस्त है और एक बाजू में फ्रेंड है और उसके बीच में आप बैठे हो, तो आप दोनों के बीच में हो, दैट इज कॉल्ड एज अ बिटवीननेस पॉइंट। सो नाउ इसके बीच पे आपका आगे है, इसके आपके सम एग्जांपल्स है, तो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सो ऑन अ नंबर लाइन ए बी सी डी आर सच दैट ए बी डिस्टेंस इज 5, बी सी डिस्टेंस इज 11 एंड डी सी इज अ ए सी इज अ 6। सो व्हाट इज द पॉइंट बिटवीन टू अदर 2 पॉइंट्स। सो हम एक डिस्टेंस निकाल लेते हैं, हमें एक लाइन निकाल ले सकते हैं। सो सबसे बड़ा डिस्टेंस क्या है, आपके पास बी सी है, तो मैं बी यहाँ काउंट कर लेता हूँ और मेरा सी आता आ चुका है। तो इन दोनों के बीच में ए चाहिए कहीं तो भी, तो ए पे मेरा बी टू ए कितना दिया 5, बी टू ए मेरा 5, ये मेरा 5 हो चुका है, ये मेरा 6 हो चुका है। तो ए इज बिटवीन बी एंड सी, ए इज बिटवीन बी एंड सी हम कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे दिखा है क्लियरली मेंशन किया है। ए बी डिस्टेंस कितना चाहिए मुझे, ए टू बी डिस्टेंस कितना चाहिए 5, बट मेरा बी टू सी कितना है 11, तो मैं इन दोनों में से सबट्रैक्ट करूँगा तो मुझे बी सी मिलेगा 6। ऑब्वियसली दीज आर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो आपको इतना लिखना है ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। अगर ये दोनों की एडिशन कर लो और इक्वल टू बड़ा नंबर आता है तो दैट विल बी योर पॉइंट आर कोलिनियर। सो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम है आपका, ये थोड़ा कैलकुलेशंस बड़े हैं। तो यू ए, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, वेट अ मिनट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरा, मैंने लाइन ड्रॉ किया यू ए। सो यू ए सबसे बड़ा क्या है मेरा, ये मेरा यू रहेगा और ये मेरा ए रहेगा, मान के चलो। सो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 215 है। सो वी टू ए, ये मेरा ए यहाँ पे है तो मैं वी इधर लूँगा, तो ये मेरा वी आ चुका है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया 140। अगर मेरा 140 है 215 है, सो 215 माइनस 140 अगर करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 75। सो ऑब्वियसली मेरा डिस्टेंस यू वी कितना दिया है 75। सो वी कैन से दैट वी इज लाइज बिटवीन यू एंड वी इज बिटवीन यू एंड ए, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर इन अ कोलिनियर, एक लाइन में है तो हम कह सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी, देरा प्रैक्टिस से देख लेते हैं अभी जस्ट। सो नाउ यू हैव टू फाइंड अ डिस्टेंस बिटवीन विद द हेल्प ऑफ अ नंबर लाइन्स। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है भाई, किसके हेल्प से, नंबर लाइन के हेल्प से। सो हमने पहला पॉइंट देखा था कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स में, उसमें पहले हमने सॉल्व किए थे, उस तरह के है। तो आपको अभी निकालना किसका है, देखिए बी टू ई। सो ऑब्वियसली ये मेरा बी है और मेरा ई है। सो मैंने पहले ही कहा है आपको बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर्स घटाना है, तो मेरा बड़ा नंबर क्या है ई है, तो मेरा 5 में से कितना जाएगा, बी मेरा 2 पे है, 2 गए, मेरा बचा कितना 3, तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा बी ई 3 होगा। सो नाउ नेक्स्ट बी ई कितना होगा मेरा 3 होगा, बी मेरा 3 हो चुका है। जे ए चाहिए अभी मुझे, जे ए चाहिए, ए कितना है मेरा 1 है, 1 माइनस ऑफ जे -2, सो माइनस माइनस ऑफ 2 हो जाएगा प्लस, तो अगेन जे ए मेरा कितना आएगा 3 आएगा। देन पी सी, अभी मेरे पी सी निकालना है, मेरा पी सी, मेरा सी है 3 और पी है -4। सो मैंने हमेशा कहा बड़े में से छोटा, तो मेरा 3 माइनस माइनस ऑफ 4, सो ये दोनों के प्लस हो जाएगा तो मेरा 7 आएगा। तो पी सी कितना आएगा मेरा 7। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी कितना होगा 7 यूनिट्स होगा। आई होप आपको समझ में आ चुका है, अभी आप बाकी की प्रॉब्लम्स आसानी से कर लोगे गाइस। सो नाउ आगे चलते हैं, इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज एक्स एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज वाई। सो फाइंड ए बी फाइंड आउट करना है, मीन्स ए और वाई दोनों दिए, कोऑर्डिनेट ए इज 1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज वाई। तो मैंने हमेशा कहा है बड़े में से छोटा डिस्टेंस निकालना है ना भाई, बड़े में से छोटा, तो मेरा बड़ा ए है 7, वाई माइनस एक्स करूँगा तो मुझे ए बी कितना मिलेगा 6 मिलेगा। यहाँ पे भी -2 मीन्स एक्स माइनस वाई करूँगा मैं, यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है मेरा एक्स है, तो एक्स में से वाई माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 8। सो यहाँ पे 7 में से माइनस ऑफ -3,
तो ये प्लस हो जाएगा तो मुझे मिलेगा 10, मेरा थर्ड आएगा 10। देन आप बाकी का कर लोगे, ये बहुत आसान है। दिस इज बेसिक कंसेप्ट, दिस आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। सो इसके बाद का आपको आई होप आपको समझ में आ चुका है किस तरह के सिनारियो है क्या है। तो हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। तो यहाँ पे थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी, फाइंड ए बी निकालना है आपको, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तो आपके पास ए सी दिया हुआ है और सी बी दिया हुआ है। ये मेरा ए और ये मेरी नंबर लाइन और ये मेरा सी। सो ए सी दिए हुआ है आपका 10, मेरा हो चुका है 10। सो मेरा अभी दिए हुआ है बी, बी सी दिए हुआ है कितना है 8, ये मेरा हो चुका है बी यहाँ पे, और ये हो चुका है मेरा 8। तो आपको पूछा है डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच में निकालना है। तो मैं 10 में से 8 निकालूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 2। सो मेरा डी ऑफ ए बी कितना रहेगा गाइस, 2 रहेगा। कितना सिंपल प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रेशर लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आ चुका है किस तरह के प्रॉब्लम्स है। और अभी आपके जो नीचे के प्रॉब्लम्स दिए, प्रॉब्लम नंबर 6 एंड 7, आपको 6 एंड 7 आसानी से हो जाएंगे, कुछ भी बात नहीं है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। आपने जैसे 4th नंबर का सॉल्व किया वैसे ही 6 नंबर में के तीनों सॉल्व करने हैं आपको। सो चलो मैं इसमें का आपको क्वेश्चन नंबर 6 में का थर्ड बता देता हूँ, क्योंकि अभी आपको एक नया रूट दिखने को मिल रहा है। रूट है तो कैसे करें, दिक्कत होगी ना, तो मैं ले लेता हूँ, एक प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता हूँ। सो ये मेरी नंबर लाइन है सबसे पहले तो। सो इसके बाद आता है एक्स जेड, देख लो एक्स जेड, ये मेरा एक्स और ये मेरा जेड, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है मुझे देख लीजिए। मेरा डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 3√7। सो अभी मुझे ड्रॉ करना है एक्स वाई, मेरा एक्स है, वाई यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ये मेरा वाई, तो मेरा इसका दिया है √7। सो इसके आगे कुछ नहीं, मीन्स 1 है, कंसिडर करना है यहाँ पे 1 है। तो अभी मैं इसका ये निकालता हूँ आंसर, तो बड़े में से छोटा, तो मेरे पास बड़ा डिस्टेंस कितना है एक्स जेड, तो मैं निकालूंगा यहाँ पे 3√7 माइनस √7 करूँगा, बड़े में से छोटा हमेशा छोटा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2√7। सही होगा, सिंपल है ना, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ समझना है थोड़ा करना क्या है। तो सो दीज आर द पॉइंट्स। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके आगे के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं लाइन सेगमेंट, रे, ए बी, देन इसके बाद में प्रैक्टिस सेट 1.2, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह, एंड कंपैरिजन थोड़ा सा देख लेंगे, क्या कंपैरिजन्स करना है, किसके बीच में क्या रहता है, इक्वल टू कॉन्करेंट साइंस वगैरह। सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सो दैट इज लेक्चर नंबर 2। एंड don't forget to like, share and subscribe to our channel for such a more video and interesting way and easy way learning. So thank you so much guys.